see this board? Yes, sir. So we were discussing the single slit diffraction in the last class, and we assumed that there is a slit with finite width. एक स्लिट है हमारे पास जिसका width हमने अब इग्नोर नहीं किया है, and we assume that this width has some size, and that size is b. So infinite rays are coming from this slit, but we assume some finite sources only. So in this range we have n sources. 1 is here, 2 is here, 3 is here, and nth is here. Okay. And if we want to see intensity at some point P, then the intensity at any point P on this screen is the combination of all the waves reaching at this point P from all the sources. जो भी इंटेंसिटी यहाँ पर होगी वो इन सभी वेव्स की वजह से होगी. And at the slit, जब slit पे light है, these are coherent, means all the light wave has the same phase. But when they reach at this point P, they are not in same phase. एक ही phase में नहीं होंगे क्योंकि because they are traveling different path. So if ray 1, the light coming from first source, is traveling r distance, then second ray is traveling a little bit extra path, which we calculated r plus delta sine theta, and the last ray is traveling how much path? R plus n minus 1 delta sine theta. Okay. Delta is separation between any two sources, and theta is the angle made by these lights from the horizontal. ये light rays horizontal से किस angle पर है, or the angle made by the perpendicular on this ray from this point. Okay. So the final intensity or the final electric field that we will observe on P is the sum of all rays. So जो final electric field होगा, that is some E1 plus E2 plus E3 due to nth source. Okay. And what is E1? E1 is the electric field due to first source. जो पहला सोर्स है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर is equal to the amplitude divided by n, because we assume that the whole intensity जो भी लाइट पीछे से आ रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी n सोर्सेस में बराबर डिवाइड हो गया है, and E naught is the amplitude. Amplitude of incident light. Okay, into sine omega t minus kr. Why r? Because we are measuring at a distance r at time t. Second source की वजह से E naught by n sine omega t minus k. Now r is replaced by r plus delta sine theta. And for the last source, the electric field at the same point P, which is En, is E naught by n sine omega t minus k
r plus n minus 1 delta sine theta is much. So whatever is the intensity at point P, जो भी intensity P पर होगी, that will be given by E square or proportional to E square. और E कैसे मिलेगा? By taking sum of all these numbers. So let us calculate that number, and that is simply the sum of all the sine. Omega t minus k r minus k delta sine theta and the last term will be sine omega t minus kr minus nth term है, so n minus 1 delta sine theta. This is the electric field at point P. इसको simplify करना है. So let me so k delta sine theta is appearing multiple times. Let me say k delta sine theta is equal to some other number. अभी के लिए k delta sine theta को कुछ मान लेते हैं. It's like a phase, so phi. So that we can get some nice looking equation. E naught by n omega t minus kr, and let us say omega t minus kr is also some number. Let us say psi. Okay, so sin psi plus sin psi plus phi sin psi plus 2 phi, and the last term is sin psi plus n minus 1 phi. Okay, क्या समीशन होगा इसका? किसने ट्राई किया था? क्या आंसर लिखें इसके लिए? Sin n phi by 2 into sin n phi by 2. Okay, upon sin phi by 2. okay. What about psi? Psi का भी तो कुछ होगा ना? अच्छा, इसके मल्टीप्लाई में इसके न्यूमरेटर में sin psi plus n minus 1 into phi by 2. psi plus n minus 1 into phi by 2. Okay. क्या नाम है आपका? सर आकाश. Okay, this is one answer. थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं. So there are many techniques, आपने पहले भी पढ़ी हैं, और this is not a difficult task. आप इसको खुद से भी ड्राइव कर सकते हैं. Let me do it my way. हो सकता है आपको पसंद ना आए, but does not mean that आपको ऐसे ही करना है. आपको जैसे भी सही लगता है वैसे कर सकते हैं इसको. So let me say that this is actually imaginary part of this thing, e to the power I psi, because इसका imaginary part क्या होगा? It is cos psi plus I sin psi. Imaginary part means जो भी I का कोफिशिएंट है, sin psi. ऐसे ही this is imaginary part of psi plus phi. Second term is imaginary part of psi plus 2 phi, और जो last term है that is imaginary part of I psi plus n minus 1 phi. So हर एक का इंडिविजुअली इमेजिनरी पार्ट निकालने की बजाय वी विल फर्स्ट सम इट. पहले हम इसको सम कर लेंगे, देन इमेजिनरी पार्ट बाहर निकाल लेंगे.
दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते भी हैं। क्या होता है इस सीरीज का आंसर? a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस 1 किसके बराबर होता है ये? a into r की पावर n minus 1 into r minus r 1 का पावर n minus 1 upon r on minus r minus 1 कैसे? जब r एक से बड़ा हो सर। ठीक है, आंसर कैसे मिला आपको? जानते हैं कहां से आता है? नो सर। मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखने में उतना मेहनत मत कीजिए, तरीके याद रखने में मेहनत कीजिए। 2 लाइन का डेरिवेशन है, 2 का भी नहीं है। ये कैलकुलेट करना है ना सर इसे एस को ए से आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर क्यूब। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी? ए आर एन। इसको हम लिख रहे हैं इस तरीके से, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा राइट में लिखेंगे यहाँ पर और माइनस कर दीजिए आप। एस माइनस आर एस, ये क्या हो जाएगा? ए एज इट इज, ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या बचेगा? माइनस ए आर एन। एस कितना हुआ? छोटा सा आंसर है। ओके, सो आपको याद भी नहीं रखना है। इफ यू जस्ट नो द ट्रिक कि आर से मल्टीप्लाई करना है, यू कैन डू दिस मच कैलकुलेशंस इन योर माइंड। आपको पेपर पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। सेम थिंग इज हियर। सो फर्स्ट टर्म आई साई, और आर से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? एन फाई। सो आई साई एंड सॉरी माइनस साइन। आई साई प्लस एन फाई, इससे डिवाइड करना है 1 माइनस ई टू द पावर आई फाई। ओके, सो दिस इज द आंसर। इसका इमेजिनरी पार्ट, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सही से। आई साई तो ऊपर से कॉमन है, एज इट इज बाहर आ जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस ई टू द पावर आई एन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर आई फाई। ये कितना हुआ? सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट पार्ट को, इनटू, सो ई नॉट बाई एन, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही छोड़ देते हैं। इफ वी सिंप्लीफाई दिस, कैसे सिंप्लीफाई करना है? टेक ई टू द पावर माइनस आई एन फाई अपॉन 2 आउट, और नीचे से क्या बाहर निकालना है आपने? e to the power i phi upon 2 आउट। बाहर क्या बचेगा? e to the power माइनस i n phi by 2 माइनस e to the power i n phi by 2। यहां पर actually we are going to make sine term in numerator and denominator। t नॉट by n, ये सारे एक्सपोनेंशियल एक जगह पर आ जाएंगे। i psi प्लस n phi by 2 माइनस phi by 2, और ये क्या है? साइन n phi by 2 sin phi by 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग, ये रियल है, ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स है।
इसका एक पार्ट रियल है, एक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। हमें सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट चाहिए, कितना हो जाएगा? सो E इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज बाहर आ जाएंगे दोनों, और इसका इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है? साइन साई प्लस n माइनस 1 बाई 2 पाई। आकाश यही बताया था क्या आपने? साइन n फाइव बाई 2 साइन 5 बाई 2 साई प्लस n माइनस 1 5 बाई 2। तो यू कैन सी सेम आंसर मिल रहा है, नथिंग इज चेंज्ड। एनीवे वी गॉट द आंसर। सारे नंबर्स वापस रख दीजिए। साई क्या था? ओमेगा टी माइनस के आर। फाई क्या है? के डेल्टा साइन थीटा विथ साई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के आर फाई के डेल्टा साइन थीटा। So actually this electric field is function of time and function of position also. As long as you are at same point, जब तक आप उसी पॉइंट पर है, r तो नहीं चेंज होगा, डेल्टा फिक्स है, थीटा भी नहीं चेंज होगा, बट यस यू कैन नॉट स्टॉप टाइम, टाइम तो लगातार बढ़ ही रहा है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम। और जो लाइट आपको पी पे दिखाई देगी, वो लाइट क्या है जो पी पे दिखाई देगी? उसकी इंटेंसिटी it is proportional to E square or proportional to E naught square upon n square sin square n phi by 2 sin square phi by 2 sin square this whole thing psi plus n minus 1 by 2 phi. So intensity is also changing with time because psi time के साथ change हो रहा है. So same question again, क्या पी पर जो लाइट आपको दिखाई देगी वो टाइम के साथ बदलेगी? Yes or no? नो सर। क्यों? सर साइन को 1/2 ले लेंगे ना। सी ये एक्चुअल इंटेंसिटी है जो स्क्रीन पर दिखाई जो है वास्तव में वो यही है, बट जो हम देखते हैं वो एक्चुअलिटी नहीं है। जो इंटेंसिटी हम देखते हैं वो एक्चुअली आई का एवरेज है। क्यों? ये इतना स्पीड से चेंज होता है कि हमारी आंख उतना परसिस्टेंट नहीं है उस चेंज को देखने के लिए। तो जो हमको दिखाई देगा वो आई का एवरेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये कितना हो जाएगा? E naught by n sin n phi by 2 sin phi by 2 का स्क्वायर, और इसका एवरेज लेंगे टाइम के साथ, सो यू जस्ट गिव, आपको सिर्फ हाफ मिलेगा। तो दिस इज द इंटेंसिटी। रैपिड चेंज होने की वजह से टाइम वेरिएशन हमको दिखता नहीं है। क्यों इतना रैपिड है? बिकॉज ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज सो हाई फॉर लाइट दैट वी कैन नॉट सी द चेंज। ओमेगा कम होता तो हम ये चेंज देख पाते। सो दिस इज द लाइट। ये है जो एवरेज लाइट आपको दिखाई देगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन n तो चला जाएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट। n की वैल्यू वास्तव में तो इनफाइनाइट है। E नॉट जो भी आपने बल्ब यूज किया उस पर डिपेंड करेगा। फाई, फाई क्या है? के मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट, डेल्टा हमने बनाया था। इट इज ए फंक्शन ऑफ स्लिट का विड्थ एंड नंबर ऑफ source inside it. So delta is b upon n minus 1. So actually delta is going to 0. जैसे हम लिमिट लेंगे डेल्टा भी खत्म हो जाना है। थीटा is how much away are we from the front of the slit. स्लिट के सामने से कितना हम inclined है। स्लिट के ठीक सामने थीटा 0 है, स्लिट के सामने नहीं है, then theta will increase or decrease. So like as long as we are at point P, यदि हम point P पर हैं,
थीटा इज फिक्स, थीटा भी फिक्स है, जब तक आप पी से कहीं और इधर उधर नहीं जाएंगे थीटा नहीं चेंज होने वाला। बी की वैल्यू फिक्स है, बाकी डेल्टा और एन जीरो हो जाएंगे व्हेन वी टेक द लिमिट। सो वी हैव सम फाइनाइट इंटेंसिटी एट पी, और वो चेंज नहीं हो रही है, एवरेज इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही। कितना है एवरेज इंटेंसिटी? नाउ वी जस्ट टेक द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें लिमिट लेनी है n टेंड्स टू इंफिनिटी की, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस कंपोनेंट फर्स्ट। हमको ये n 5/2 या 5/2 चेक करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है। सो व्हाट इज n 5/2? n pi is k delta sin theta by 2। किसके बराबर है ये? k means 2 pi upon lambda, delta is gap between two sources b upon n minus 1 sin theta। जब तक पॉइंट p पर है थीटा भी चेंज नहीं होगा। इसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में किसके बराबर हो जाएगा? सो इफ यू टेक द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट हो रहा है, जीरो हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर नंबर की ओर जा रहा है? 2 कैंसिल, ठीक है। पाई v sin थीटा अपॉन, अभी नहीं दीजिए, ये पार्ट तो कॉमन है, n अपॉन n माइनस 1, इसको हम लिखते हैं -1 + 1। सो पाई b sin theta upon lambda, and this can be written as 1 + 1 upon n minus 1। So if I take the limit n tends to infinity, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? वन हो जाएगी सर। So I get this constant only, right? Pi b sin theta upon lambda, right? 1 as it is, n minus 1 will go towards infinity और 1 upon n minus 1 will go towards 0। So ये हमारे पास बचा, इसका नाम रखते हैं बीटा, ओके, just to save the space। So n5/2 is clear। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास? 5/2। So obviously 5/2 क्या हो जाएगा? Is going like n5/2 is beta, so 5/2 is going like beta upon n। So in n tends to infinity limit, यदि n बढ़ेगा तो 5/2 is going towards 0, 5/2 0 की ओर जा रहा है। बट एक चीज और भी है, there is n here also। 5/2 कम हो रहा है, sin 5/2 भी कम हो रहा है, बट n तो बढ़ रहा है ना। सो डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी कम हो रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? 0 की ओर, इनफाइनाइट की ओर। सो वी टेक दिस होल थिंग टुगेदर, हम इस पूरी क्वांटिटी की लिमिट चेक करते हैं, n इंटू साइन 5/2 का क्या होने वाला है, ओके। सो n sin 5/2, ऑब्वियसली 5 is going towards 0, 5 0 की ओर बढ़ रहा है, but n infinite की ओर बढ़ रहा है, so their product must be some maybe constant also। हमें इसका लिमिट देखना है, ये हो जाएगा n sin, and n 5/2 is equivalent to beta, so 5/2 is equivalent to beta upon n, ठीक है। now it's even more clear, अब और ज्यादा क्लियर है। राइट साइड ये क्वांटिटी कम हो रही है, दिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है, प्रोडक्ट का क्या होगा? सो व्हेन
बीटा बाई एन बिकम्स स्मॉल, जब बीटा बाई एन धीरे धीरे कम होता जाएगा, आई कैन से दैट इट इज approximately equal to n into beta by n, right? So n cancels and this quantity is approaching towards beta. Agree? So this, इसका एक पार्ट बढ़ रहा था, एक पार्ट कम हो रहा था. The product is approaching towards beta. जो प्रोडक्ट है दोनों का वो एक कांस्टेंट की ओर मूव करता है जो कि बीटा के बराबर है. Now we have got all the results. बस इनमें यहाँ पे पुट करना है. What is the intensity at point P? इंटेंसिटी P पर कितनी मिलेगी आपको? I is proportional to, मैं हाफ को भी हटा रहा हूं बिकॉज इट विल गो इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अभी हम I is not E square, I is proportional to E square, so ये भी proportional है आपका. So हाफ को भी हटा सकते हैं and I is just proportional to E naught square. E naught भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा दीजिए. Sin square बीटा divided by बीटा. Sin beta divided by beta square. So this is the intensity at any point on the screen. Beta क्या है? Beta is pi b sin theta upon lambda. Okay. So this is the final result. मैथमेटिक्स में कोई कंफ्यूजन है आपको कहीं? डेरिवेशन में कोई कहीं डाउट किसी भी तरह का? Now let us discuss this result. ये रिजल्ट है क्या? So intensity is proportional to sin beta upon beta square, where beta is pi b sin theta upon lambda. We have slit here, slit यहाँ पे था हमारा. And if we are in front of slit, यदि हम slit के ठीक सामने हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? यदि हम टेलीस्कोप यहाँ लगा के देख रहे हैं तो जीरो. इधर को बढ़ेंगे तो थीटा इज 0 से 90 के बीच कुछ होगा. यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा. सेम इज इधर, सेम इज ऑन दिस साइड. थीटा इज डिक्रीजिंग नाउ. 0 और -90 के बीच कुछ हो सकता है और बिल्कुल स्लिट के नीचे ही आ जाएंगे तो -90. थीटा 90 या -90 के बियॉन्ड नहीं जाने वाला, उसका मतलब है रिफ्लेक्टेड साइड में देख रहे हैं, राइट? सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू जो हो सकती है वो इन दो लिमिट्स के बीच में ही कुछ होगी, राइट? कुछ पर्टिकुलर पॉइंट फोकस करते हैं. सामने वाले पॉइंट पे क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा इज इक्वल टू 0 है तो बीटा कितना हुआ? 0. बीटा 0 है तो इंटेंसिटी कितनी होगी? 1. So now it depends on this term sin beta upon beta. Okay. So पहले इस प्लॉट को देखते हैं, प्लॉट है कैसा देखने में. One thing I want to remind you, beta is just a parameter. आप स्क्रीन पर कहाँ हैं वो थीटा बताता है. ओके. सो लाइक यदि आप किसी एंगल पे देख रहे हैं, आपको थीटा पता करना होगा, उस थीटा के करस्पॉन्डिंग बीटा पता करेंगे और उस बीटा के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी पता चलेगी. ऐसा नहीं है कि मैंने कहा बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो आप यहाँ से 45 डिग्री पे देखने लगे. बीटा 45 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन से 45 डिग्री पे देखना है आपको. फाइंड द करस्पॉन्डिंग थीटा एंड दैट विल बी द करेक्ट पोजीशन ऑफ द टेलीस्कोप. ओके. सो बीटा इज जस्ट ए पैरामीटर, बट यस बीटा में कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है क्योंकि इंटेंसिटी
बीटा के टर्म्स में थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, अदरवाइज दिस इज द फॉर्म। सही आंसर तो यही है, साइन पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा divided by pi b sin theta upon lambda. But you can see this is not a nice looking form. That is why we split it in two parts. इसलिए हमने इसको दो भाग में split कर रखा है. So let us make this plot. इसको बनाते हैं sin beta upon beta को, and that will make several things clear. So we are here 0. Okay. And beta is increasing in this side, so beta is positive on right, beta is negative on left side. बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम, हम पता कर सकते हैं, थीटा कैन है मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, सो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पाई वी अपॉन लैम्डा। सो बीटा का मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करता है बी एंड लैम्डा पर। सो कोई ना कोई कट जरूर होगा, बीटा इसके बाहर नहीं आ सकता, बीटा इसके पीछे नहीं जा सकता। ये वैल्यू कितनी है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, सो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई वी अपॉन लैम्डा। सो पाई वी अपॉन लैम्डा के बाहर हम नहीं देख सकते, माइनस पाई वी अपॉन लैम्डा के बाहर नहीं देख सकते। इन दो रेंज के बीच में कुछ सारा पैटर्न देखना है। किस तरह का प्लॉट होता है ये बताएंगे, साइन बीटा अपॉन बीटा। So if I plot this graph on this sheet where y is equal to sin beta upon beta, किस तरह की फॉर्म बनेगी, न्यूमरेटर प्लॉट कीजिए साइन बीटा, किस तरह का प्लॉट है साइन बीटा, इस तरह का। सेम ऑन दिस साइड, ऐसे इस साइड में भी आएगा। ये तो साइन बीटा होगा। व्हाट इज 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा किस तरह का फॉर्म रखता है, सो व्हेन बीटा इज 0 1 अपॉन बीटा इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, एंड एज बीटा इंक्रीज, जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा 1 अपॉन बीटा डाउन होगा। व्हाट अबाउट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सेम बट यहाँ पे नेगेटिव भी है, सो समथिंग लाइक दिस। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 1 अपॉन बीटा है, ये 1 अपॉन बीटा इस साइड में है, और साइन बीटा आप देख ही रहे हैं, देयर प्रोडक्ट। पहले कुछ इजी पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, साइन बीटा 0 है यहाँ पर, 1 अपॉन बीटा हैज सम वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 into non-zero is 0. Then here also sin beta is 0, 1 upon beta is non-zero, product is 0. So at all these values, जितने भी black dot है, sin beta upon beta is 0. इधर भी sin beta upon beta is 0. सेंटर में sin beta is 0 and 1 upon beta is infinite.
तो यहाँ पे क्या होगा, 0 या इनफाइनाइट? ये 0 इंटू इनफाइनाइट का केस है, तो 0 पे मार्क करें या इनफाइनाइट पे मार्क करें या कहीं बीच में मार्क करें? सो साइन बीटा अपॉन बीटा एट बीटा इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होगा? 1 वाई? लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। See, depends on which term is moving at a faster rate. वो आप सीधे सीधे नहीं पता कर सकते। The best way is look at the individual component. साइन बीटा को एक्सपेंड कीजिए। It is so 1 upon बीटा बाहर है। It is बीटा माइनस बीटा क्यूब by factorial 3, बीटा 5 by factorial 5 and so on. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज बीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, थर्ड टर्म इज बीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन. सो इफ यू पुट बीटा इज इक्वल टू 0, क्या मिला आपको? ऑल द टर्म्स गो अवे, सारी टर्म्स खत्म हो गई, वी हैव ओनली फर्स्ट टर्म 1, राइट? सो सेंटर पे प्रोडक्ट ना ही 0 है ना ही इनफाइनाइट है, इट इज 1. 1 मीन्स इतना वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे हमको वैल्यू पता है 0 है इन सभी के बीच में. सो राइट साइड में 1 अपॉन बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 अपॉन बीटा तो पॉजिटिव है. सो साइन ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का जो भी साइन होगा वो साइन बीटा के साइन के बराबर ही हो जाएगा. साइन बीटा पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा. साइन बीटा नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव है. सो 1 से स्टार्ट कीजिए, 0 की ओर बढ़िए. ओके, अब साइन बीटा नेगेटिव, सो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा, सो इट विल डिक्रीज. व्हाट अबाउट हियर, जहां साइन बीटा -1 हो जाता है? साइन बीटा इज -1, 1 अपॉन बीटा, इसकी कोई वैल्यू होगी, राइट? सो -1 इंटू ये जो भी होगा, एंड ऑब्वियसली बीटा इज हाउ मच? बीटा यहाँ पे कितना है? सो बीटा इज 0 हियर, बीटा इज पाई हियर. यहाँ पे बीटा कितना है? 3 पाई बाई 2. 3 पाई बाई 2 मीन्स एक से बड़ा. 1 अपॉन बीटा इज लेस देन 1. सो -1 इंटू लेस देन 1. ये ग्राफ थोड़ा गलत बन गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी. So beta is pi. Pi means 3. Pi by 2 means is 1.5. So beta, when beta is 1, 1 upon beta is also 1. 1 upon beta भी 1 होगा. बीटा जब 1 से बड़ा है, 1 upon beta is less than 1. जब बीटा 1 से छोटा है, 1 upon beta is greater than 1. So graph is something like this. 1 upon beta का ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा. 0 पे इनफाइनाइट है, रैपिडली गिरता है और बहुत जल्दी ही 1 से छोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये 0 की ओर जाना शुरू कर देता है. So at all these value, beta is less than 1. So -1 into less than 1 is some minus but less than 1. So product कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ से फिर ऊपर आ जाएगा 0 की ओर, अब थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर 0 की ओर और कम, 0 की ओर. Something like this. Same on this side, इधर भी ऐसा ही होगा. साइन बीटा नेगेटिव, 1 अपॉन बीटा इज आल्सो नेगेटिव, सो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड समथिंग लाइक दिस. लेट मी मेक ए सेपरेट पिक्चर. एक साफ पिक्चर बना देते हैं अलग से.
beta sin beta upon beta, and graph look like this. This is beta is equal to 0. यहाँ बीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई. यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है? 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? पाई बी अपॉन लैम्डा तक. सेम हियर, बीटा की वैल्यू माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई. और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? माइनस पाई बी अपॉन लैम्डा तक. So this is the kind of behavior you are getting with respect to beta. थीटा की वैल्यू क्या है? So when beta is equal to 0, बहुत इजी है पता करना, थीटा भी 0 है. बाकी पॉइंट्स में थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? So पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू बीटा. So if beta is equal to पाई, साइन थीटा कितना हुआ? साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी. So theta के टर्म्स में you can see this value is not a good looking number. बीटा के रेस्पेक्ट में बहुत इजी है कि बीटा इज इक्वल टू पाई पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है. थीटा के टर्म्स में ये एक ऐसा एंगल है विच उसकी वैल्यू साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी से दी जाती है. यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 2 पाई, सो 2 लैम्डा अपॉन बी. ओके. और पाई बी अपॉन लैम्डा तक आते आते थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 2. ओके. सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू गेट मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा? आपको डार्क इंटेंसिटी कहाँ का मिलेगी? एट बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई. और कहां तक बढ़ते जाना है? अप टू 10 पाई माइनस पाई बी अपॉन लैम्डा तक. इसके ऊपर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, राइट? थीटा के टर्म्स में एक्चुअली थीटा इज द एक्चुअल पॉइंट. आप जब टेलीस्कोप मूव करेंगे तो आप थीटा देख सकते हैं. बीटा तो एक पैरामीटर है. थीटा के टर्म्स में सेम नंबर्स लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी, साइन इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन बी. और ये कहां तक जा सकता है? प्लस माइनस पाई बाई 2 तक. ओके. मैक्सिमा की पोजीशंस बताइए. एक तो क्लियर है, बीटा इज इक्वल टू 0. ये था. ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? यहाँ पे लाइट कितनी होगी इस पॉइंट पर? साइन बीटा अपॉन बीटा इज नेगेटिव हियर. इस पॉइंट का क्या होगा? डज इट बिलोंग टू डार्क और ब्राइट? राइट. इनफैक्ट व्हाई? ये साइन बीटा अपॉन बीटा का ग्राफ है. साइन बीटा अपॉन बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इंटेंसिटी है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखते हैं. व्हाट यू सी इज इंटेंसिटी. जो आपको दिखाई देता है इंटेंसिटी होती है. वो क्या है? वो इसका स्क्वायर है. ऑब्वियसली इंटेंसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. इंटेंसिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. सो इंटेंसिटी का प्लॉट क्या होगा? इस कर्व का स्क्वायर. इसी ग्राफ का स्क्वायर इंटेंसिटी प्लॉट बन जाएगा. किस तरह का ग्राफ दिखेगा यदि इसे प्लॉट करें? साइन बीटा अपॉन बीटा यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1,
जीरो पे जीरो आ जाएगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव। ऊपर ही जाएगा हमेशा, इंटेंसिटी will always be positive. So here also you have some intensity, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं है, बट इट हैज सम इंटेंसिटी आल्सो। क्या वैल्यू है यहाँ पे बीटा की? 3π/2 या कुछ और? थ्री पाई बाई टू 3π/2 एक अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर है, बिकॉज टर्निंग कहां से हो रही है वो बहुत क्लियर नहीं है। साइन बीटा की बात मानेंगे तो 3π/2 से कर्व वापस ऊपर आना शुरू हो गया था। 1/बीटा बीटा की बात मानेंगे तो कर्व अभी भी नीचे को जाना चाहिए था। प्रोडक्ट कहां जाएगा नहीं मालूम। सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? इस केस में आप क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर के आपको ये पता करना है साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर becomes maximum for what values of beta sin square beta upon beta square becomes maximum. This is your task. कैसे पता करेंगे इसको? बीटा की किस वैल्यू पे ये टर्म मैक्सिमम है? सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम मान लीजिए, और इन जनरल x की किस वैल्यू पे कोई फंक्शन fx मैक्सिमम में मिनिमम है, कैसे पता करते हैं आप? डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट इट। So sin beta upon sin square beta upon beta square maximum है, so I can also say that sin beta upon beta is also maximum होगा या minimum होगा, और the derivative of this function with respect to beta will be 0. बीटा की जिस वैल्यू पे डेरिवेटिव 0 होता है उस वैल्यू पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्या वैल्यूज है ये? डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए इसका। सो साइन बीटा एज इट इज, बीटा का डेरिवेटिव माइनस बीटा स्क्वायर प्लस साइन बीटा का डेरिवेटिव कॉस बीटा 1/बीटा एज इट इज। दिस टर्म, दिस इज 0। लेट मी कॉल इट बीटा स्टार, मतलब बीटा की इन वैल्यूज पर हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम है। क्या वैल्यूज हैं बीटा स्टार की? सो कॉस बीटा स्टार अपॉन बीटा स्टार इज इक्वल टू साइन बीटा स्टार डिवाइडेड बाय बीटा स्टार स्क्वायर। ओके, और बीटा इज इक्वल टू बीटा स्टार इज इक्वल टू 10 बीटा स्टार। बीटा की इन वैल्यूज पर इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। बता सकते हैं क्या वैल्यू है बीटा की? आपने कहा 3π/2, चेक कीजिए 3π/2 पे बात बन रही है। आई मीन इफ आई पुट बीटा इज इक्वल टू 3π/2, क्या दोनों टर्म्स इक्वल आती हैं, लेफ्ट एंड राइट? तो 0 पे वैल्यू आएगी, 0 पे आएगा। 0 पे तो आ रही है, हाँ, दोनों साइड बराबर है और सही भी है। 0 तो यहाँ से भी दिख रहा है, ग्राफ से भी, राइट? तो 0 पे पाई पे भी आएगा। टैन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो वैल्यू 0 बार बार रिपीट होती है 0 पे पाई पे, उस पे आ सकते हैं। सॉरी, से इट अगेन, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर टैन का कर्व प्लॉट करते तो 0 से π/2 पे 0 से इन्फिनिटी तक वो
कर्व प्लॉट करते हैं तो 0 नहीं आता है हर 0 से पाई की रेंज में, 0 पे पाई पे, फिर 2 पाई पे। लेट मी प्लॉट द कर्व ऑफ 10 का प्लॉट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का आएगा। सो 0 यहाँ रखते हैं एंड यहाँ कहीं π/2 कर देते हैं। ये बीटा स्टार चल रहा है और लेट अस से ये पाई हो गया आपका। इस तरह से बिहेव करता है 10 0 इज 0, ये 10 बीटा स्टार एंड देन इट विल इंक्रीज। 10 π/2 कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। सो ये रैपिडली बढ़ेगा, बहुत रैपिडली बढ़ेगा। उसके बाद π/2 पे उसके बाद माइनस पे आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाता है जस्ट। उसके ठीक बाद ये इमीडिएटली नेगेटिव हो जाएगा। यस और पाई तक पहुंचते पहुंचते फिर से 0 हो जाता है, राइट? यस सर। और फिर 3 π/2 पर क्या होगा? फिर से वैसे इन्फिनिटी तक ग्रो करेगा सर। फिर से इंफिनिटी तक बढ़ेगा, राइट? ये पीरियोडिक टाइप चलेगा ये जो हमारा ग्राफ है, सिमिलर ओरिएंटेशन दिखाएगा। तो ये बीटा का ग्राफ है। किस किस वैल्यूज पे 10 बीटा और बीटा इक्वल है? एक 0 तो पॉइंट पाई यही एन मिलता पाई है, पे। बीटा भी 0, 10 बीटा भी 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा पाई पे सर। पाई पर नहीं, पाई पर बीटा कितना है? अच्छा हाँ सर। बीटा पाई है और 10 पाई बीटा पाई और 3π/2 के बीच में आएगा ये। 3 π/2 पर भी बात नहीं बन रही है। 3 π/2 पर 3 π/2 कहाँ होगा आपका? इसके आगे ना, पाई और 3π/2 के बीच में। राइट। तो 3 π/2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 3 π/2 पे तो 10 बीटा इनफाइनाइट हो गया। उसके पीछे कहीं ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहां दोनों बराबर हो। कैसे पता करेंगे वो पॉइंट? पहले तो इसको हटा देते हैं, ये तो सही आंसर नहीं था आपका। तो इसका एक तरीका है पता करने का। वी नीड ऑल द पॉइंट्स वेयर बीटा एंड 10 बीटा आर इक्वल। ठीक है, so we are going to solve this equation. हमें सिर्फ वो पॉइंट्स पता करने हैं वेयर बीटा एंड 10 बीटा हैव इक्वल वैल्यू। इजी है, मैथमेटिकली करना मुश्किल होगा, ग्राफिकली वी कैन डू इट। सो आई एम गोइंग टू मेक ए प्लॉट ऑफ 10 बीटा। जो अभी प्लॉट किया था उसी को रिप्लॉट कर रहे हैं। सर यस, ऊपर वाले ग्राफ को अगर हम y=x के साथ इंटरसेक्ट कराएं तो शायद वो सॉल्यूशन आएगा। वही करने जा रहे हैं। अच्छा, So 1 2 3 4 5 π/2 1 2 3 4 5 pi 1 2 3 4 5 3 π/2 1 2 3 4 5 2 pi। So this is one full round। इसके बाद रिपीट करेगा एज इट इज। सेम हियर, यहाँ पे भी कुछ होना है। -π/2 -3 π/2 -2 pi। So 10 we plot 10 बीटा on y axis। किस तरह का ग्राफ होगा? Let me first draw the supporting line। Just for my help। And now I am going to draw this curve। So ये कोई किसी काम की लाइन नहीं है। I am just drawing this for my support।
एंड सो स्टार्ट फ्रॉम 0, tan बीटा 0 से स्टार्ट होगा, π/2 पहुंचते पहुंचते ये इनफाइनाइट हो चुका होगा। π/2 पर tan बीटा क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी? प्लस या माइनस? π/2 प्लस प्लस होता है इसका। और 91 डिग्री पर? सर माइनस इन्फिनिटी। तो कैसे कह रहे हैं कि 90 पर प्लस होगा? हो सकता है माइनस हो। सो π/2 इज ए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। एक साइड से अप्रोच करेंगे तो माइनस दिखाएगा, दूसरी साइड से अप्रोच करेंगे प्लस दिखाएगा। सेम थिंग इट विद 3π/2। ये दिक्कत 3π/2 पर आने वाली है और ये दिक्कत आपकी 5π/2 पे आने वाली है। सो दीज आर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। इसके बाद ये फिर रिपीट करेगा ऐसे, हम चाहे तो उसको आगे ड्रॉ कर सकते हैं। It will just keep on repeating like this. सेम और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे बना सकते हैं। बना देते हैं थोड़ा सा। ऑन द सेम एक्सिस मैं इसी ग्राफ में बीटा भी प्लॉट करूंगा। सो y इज इक्वल टू बीटा, इट्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन किस तरीके से जाएगा? कुछ इस तरीके से। पहले ग्राफ को कट नहीं करेगा बिकॉज tan बीटा इंक्रीजेस मच रैपिडली। उसके बाद कट करता हुआ जाएगा बाकी सभी ग्राफ्स को। इधर भी सॉरी, दिस इज वन पॉइंट जहां बीटा और tan बीटा इक्वल है। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? tan बीटा एंड बीटा आर इक्वल। क्यों? ये लाइन क्या बताती है? y इज इक्वल टू बीटा। ये कर्व क्या बताता है? y इज इक्वल टू tan बीटा। x एक्सिस क्या थी? बीटा। सो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? ये बीटा भी है, ये tan बीटा भी है, राइट? सो ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों वैल्यू मैच करती है। एंड यू कैन सी दिस इज नॉट 3π/2। ये 3π/2 नहीं है, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम है। कितना होगा? वी विल हैव टू डू ए एग्जैक्ट प्लॉटिंग फॉर दैट। उसके लिए हमें एग्जैक्ट प्लॉट निकालना होगा। नेक्स्ट वैल्यू कहां मिलेगी? यहां पर। ये पॉइंट क्या होगा? स्लाइटली लेस देन 5π/2, राइट? ये कितना है? थोड़ा सा कम है 3π/2 से। ठीक है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहां पर भी आने वाली है। दिस इज द पॉइंट, सिमेट्रिकल है, सब कुछ यहां पे भी वही होगा। दिस इज द पॉइंट वेयर बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, और ये कितना है? -3π/2 से थोड़ा सा बड़ा, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट कब से आएगा? -5π/2 से थोड़ा सा बड़ा। सो दीज आर द मैक्सिमम। एग्जैक्ट नंबर हमें अभी भी नहीं मालूम, बट दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, सो लेट मी समराइज ऑल दीज ईयर्स। टाइम भी हो गया अभी क्लास का। मिनिमा कहां पर है? इन वैल्यूज पर। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। ओके, क्या आंसर्स हैं? एक तो इजी था, बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा स्लाइटली लेस देन 3π/2। उसके बाद +-3π/2 लेस देन
प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन. ओके, सो एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं मालूम, अप्रोक्सीमेट आइडिया हमको है, एंड दैट इज कंसिस्टेंट विद द ग्राफ आल्सो. सो ये मैक्सिमम 3π/2 पे नहीं आता, आपसे थोड़ा सा पहले ही आ जाता है. अगला मैक्सिमम 5π/2 पे नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा पहले होगा. ओके, इसका क्या मतलब है? 1/बीटा हैविंग मोर डोमिनेंस देन द साइन बीटा. 1/बीटा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इस ग्राफ को साइन बीटा के कंपैरिजन में. एनी डाउट हियर? All right, so now you can leave. Thank you, sir.